राम राम हरे हरे। सो हम लोग 19 चैप्टर पे जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी का एंट्री होता है। तो परीक्षित महाराज ही इज ऑलरेडी रिग्रेटिंग कि उन्होंने ऐसा क्यों किया करके। और सेज के साथ सो ही इज रिग्रेटिंग अबाउट इट बिकॉज दैट डजंट सूट हिम, ही इज ए डिवोटी। तो उन्होंने और वैसे उनको खबर मिल जाती है कि उनको शाप मिला है करके। और वो कृष्णा का ही सब अरेंजमेंट एंड दिस इज हाउ वी कैन काइंड ऑफ रिपेंट, ऐसा सब सोच के ही एक्सेप्ट्स इट हैप्पीली। एंड उस सब राज्य सब छोड़ के वो यमुना या फिर गंगा के तट पे। सो वी सॉ लास्ट टाइम कि देर इज, बिकॉज नेम हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली कॉल्ड आउट, कुछ आचार्य कहते हैं कि वो यमुना भी हो सकता है और कुछ आचार्य कहते हैं कि वो गंगा हो सकता है। सो इधर यमुना और गंगा उनके तट पे बैठ के ई सिटिंग देयर कि क्या करें देन कुछ सेजेस आते हैं वहां पे, तो उनसे पूछताछ पूछताछ करते हैं। So this is where we'll start. We have done the 8th verse. We'll continue from the 9th verse. Okay, 9th verse says, Satish Prabhu, do you want to read this slide? Yes, Prabhu Hare Krishna. Srimad Bhagavatam, Canto 1st, Chapter 19. Right? Yeah, Hare Prabhu. Krishna. From different parts of the universe, they arrived great sages like Arti, Chavana, Sarva, Saradavan, Ashtinemi, Bhugru, Vaishishta, Prasara, Vishwamitra, Angira, Prasar, Prasar Surma, Parshuram. Parshurama, okay, Parshurama, Uthaya, Indra, pra, Indrapada, Indra, what is this, Pramada. Prabhuji? Indra Indra Pramada, Pramada. yeah, Idam Mahu, Mediti, Devala, Aristan, Bharadwaja, Gautama, Pipalda, Maitreya, Aura, Kavyasa, Kumbhoyoni, Devapayana, and the great personality of Narada. There were also many other saintly demigods, kings, and special royal orders called Arunadayas, is a special rank of Raja Rishi from different dynasties of sages. When they all assembled together to meet the Emperor Parikshit, he received them properly and bore his head to the ground. After all the rishis and others had seated themselves comfortably, the king, humbly standing before them with the folded hands, told them of his decision to fast until death. The fortunate king said, indeed, we are the most grateful of all the kings who are trained to get favor from the great souls. Generally, the sages, consider royalty as refused to be rejected and left in the distant place. The Supreme Personality of Godhead, the control of both the transcendental and mundane world, has graciously overtaken me in the form of a Brahmana curse. Due to my being too much attached to my family life, the Lord, in order to save me, has appeared before me in such a way that only out of fear I will detach myself from the world. O Brahmana, just accept me as a completely surrendered soul and let Mother Ganga, the representative of the Lord, also accept me that way, for I have already taken the lotus feet of the Lord into my heart. Let the snake bird or whatever magical thing the Brahmana created bite me at once. I only desire that you all continue singing the deeds of Lord Vishnu, again of offering my obeisance unto all of you Brahmanas. I pray that if I should again take my birth in the material world, I will have completely attachment to the unlimited Lord Krishna, association with his devotees, and friendly relations with all living beings. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, प्रभु। तो यहाँ पे काफी सारे सेजस सब इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे। वो फास्टिंग करने के लिए बैठ गए और जैसे बैठे कृष्णा के अरेंजमेंट से वहां पे सारे सेजेस आने लगे, और सब बड़े बड़े, इंक्लूडिंग नारद मुनि, व्यास देव, ये सब सारे परशुराम आए थे वहां पे। और पराशर मुनि जो व्यासदेव के पिता है। तो ये सारे वहां पे बड़े बड़े ऋषियां सेजस वहां पे आ गए। एंड वहां पे आने के बाद ही ऑब्वियसली टुक इट एज ए ब्लेसिंग, क्योंकि वो वही कह रहे कि ये जो आप जब
आप जो सेजेस है यूजुअली यू कीप डिस्टेंस फ्रॉम मटेरियली एंग्रोज पीपल, राइट? मतलब जो वेल्दी लोग हैं उनसे आप सब डिस्टेंस रखते हो, बट आई एम रियली फॉर्चुनेट कि आप मेरे लिए आए यहाँ पे करके। एंड देन he is saying that कि उनके साथ क्या हुआ था, and now he is accepting that curse on himself because he sees that as a mercy of Krishna. कि उनको लगता है कि शायद मैं काफी अटैच हुआ रहूंगा मटेरियल वर्ल्ड में, और दिस इज द मर्सी ऑफ कृष्णा टू टेक मी आउट ऑफ दिस अटैचमेंट, ताकि मैं अटैच होके कृष्णा को भूल ना जाऊं करके। सो जो भी हो रहा है इट इज ऑल फॉर माई ओन गुड, ऐसा करके ही इज प्रेइंग टू दैट, ऑफरिंग प्रेयर्स टू देयर ऑल द सेजेस। और अगर बर्थ लेना है देन आई वांट दिस birth in the family of devotees and all. So let's see what Prabhupada says in the purports. तो 9-10 के परपट में let us go to the purport. So यहाँ पे let me share the purport. I hope you are able to see this verse, right? 9 or 10. Yes, Prabhuji, 9, 10. जय। तो यहाँ पे प्रभुपादा ने he has given information of few of these sages which is for us good to know. तो च्यावन करके है, he is a great sage and one of the sons of Bhrigu Muni. He was born prematurely when his pregnant mother was kidnapped. च्यावन is one of the 6 sons of his father. So Bhrigu Muni के lineage में है, so he is obviously reputed. Bhrigu Muni, when Brahmaji was performing great sacrifice on behalf of Varuna, Maharshi Bhrigu was born from the sacrificial fire. He was a great sage and his very dear wife was Puloma. He could travel in space like Durvasa, Narada and others, and he used to visit all the planets of the universe. Before the battle of Kurukshetra, he tried to stop the battle. Sometimes he instructed Bharadwaj Muni about the astronomical evolutions, and he is the author of the great Bhrigu Samhita, the great astrological calculations. He explained how air, fire, water, and earth are generated from ether. He explained how the air in the stomach works and regulates the intestines. As a great philosopher, he logically established the eternity of the living entity Mahabharata. He was also a great anthropologist, and the theory of evolution was long ago explained by him. He was a scientific propounder of the 4 divisions and the orders of human society known as the Varnashrama institution. He converted the Kshatriya king Vitahavya into Brahmana. लोग जो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे कास्टिज्म था और इसको यहाँ पे दिस इज वन मोर एग्जांपल. परशुराम हिमसेल्फ इज एन एग्जांपल, बट जहाँ पे इट डिपेंड्स अपॉन योर गुना एंड व्हाट यू डू, बेसिकली आप वर्ण में फिट होते हो. तो वैसे यहाँ पे एक राजा को उन्होंने ब्राह्मण में कन्वर्ट किया था. सो दैट वाज वेरी मच बीइंग डन इन आवर इन द प्रीवियस टाइम. और भृगु मुनि वाज वेरी इंटेलेक्चुअल, जैसे हमने देखा, एंड उनको वो जो जैसे इफ यू मे से आयुर्वेदा या फिर जो साइंस था, मेडिकल साइंस, उसका भी उनको वात वगैरह सारी चीजों का उनको काफी काफी नॉलेज था. एंड दिस इज नॉट ओनली भृगु मुनि, देयर आर मेनी सेजेस हु हैड दिस इंफॉर्मेशन. It is not something that was developed some few hundred years back. वशिष्ठ मुनि के बारे में ऑलरेडी प्रभुपाद ने पहले कहा था. सो राम जी के टाइम पे थे वशिष्ठ मुनि, और वहां से वो थे, और राम जी के अयोध्या के वो राजगुरु जैसे थे. सो ही वाज द priest of the kingdom. Then Parasar is the grandson of Vasishtha Muni and the father of Vyasdev. He is the son of Maharshi Shakti and his mother's name was Adrashyati. He was in the womb of his mother when she was only 12 years old, and from within the womb of his mother he learned the Vedas. His father was killed by a demon, Kalma Sapada, and to avenge this, he used to annihilate the whole world. He wanted to annihilate the whole world. He was restrained, however, by his grandfather Vasishtha. He then performed a Rakshasa killing yagya, but Maharishi Pulastra restrained him. तो हम लोग समझे कितने पावरफुल है लोग. सो ही कुड हैव विद द पावर ऑफ मंत्रा ही कुड हैव डेमोलिश द होल वर्ल्ड, और इसलिए वशिष्ठ मुनि को इंटरफेयर करना पड़ा. वशिष्ठ मुनि इज वेरी पावरफुल ब्रह्म ऋषि,
He is a very powerful rishi. He begot Vyasdev by being attracted by Satyavati, who was to become the wife of Maharaja Shantanu. By the blessing of Parasar, Satyavati became fragrant for miles. उनको वरदान मिला था कि शी वॉज ए मछुआरा, राइट? तो वो स्मेल आता था तो मच्छी का, तो उसको ब्लेसिंग मिला था, वरदान मिला था कि हर बॉडी वुड एमिट फ्रेग्रेंस, एक काफी सुंदर स्मेल वो बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और दूर दूर कोसों दूर तक वो स्मेल फैला रहता था. He was present also during the time of Bhishma's death. He was the spiritual master of Maharaja Janaka and a great devotee of Lord Shiva. He is the authority of many Vedic scripture and sociological directions. जहाँ तक मेरा समझ है, I believe he is the author of विष्णु पुराण. विष्णु पुराण जो है पराशर मुनि ने लिखा था, और पिछले युगा में पराशर मुनि was the Vyasdev. In one of the conversations I remember, not from Bhagavatam, he says व्यासदेव की प्रीवियसली आई वॉज व्यासदेव, मतलब पिछले टाइम में व्यासदेव का जो पदवी था वो पराशर मुनि का था. सो इन दिस युगा ही इज नाउ द फादर ऑफ पराशर मुनि, सॉरी, ऑफ व्यासदेव. देन वी हैव गादी सुत और विश्वामित्र, a great sage of austerity and mystic power. He is famous as Gadi Sutta because his father was Gadi, a powerful king of the province of Kanya Kubja, part of Uttar Pradesh. Although he was a Kshatriya by birth, he became Brahmana in the very same body by the power of his spiritual achievements. He picked a quarrel with Vasishtha Muni when he was a Kshatriya king and performed a great sacrifice in cooperation with the Matanga Muni, and thus was able to vanquish the sons of Vasishtha. ये कामधेनु के ऊपर है, so I think yeah, it is mentioned over here. He became a great yogi, and yet he failed to check his senses, and thus was obliged to become the father of Shakuntala, the beauty queen of the world history. Once when he was Kshatriya king, he visited the hermitage of Vasishtha Muni, and he was given a royal reception. Vishwamitra wanted from Vasishtha a cow named Nandini, and Muni refused to deliver it. Vishwamitra stole the cow, and thus there was a quarrel between the sage and the king. Vishwamitra was defeated by the spiritual strength of Vasishtha, and thus the king decided to become a Brahman. Therefore, becoming a Brahman, he underwent severe austerities. On the bank of Kaushika, he was also one who tried to stop Kurukshetra war. तो कामधेनु जो गाय है, जो नंदिनी करके भी नाम रखा है, तो वो गाय जब वहां पे बहुत सारे सैनिक के बाद साथ वो गए थे विश्वामित्र, ये रामायण में कैप्चर्ड है पास्ट टाइम बालकांड में, तो वहां पे जब वो गए थे ही वॉज पहले मतलब वहां पे गए, उन्होंने सेज को पैर भी पड़ा, ही वॉज ए गुड किंग. तो जब उन्होंने वशिष्ठ मुनि ने उनको पुश किया, थोड़ा ये किया कि रिक्वेस्ट किया कि प्लीज थोड़ा खा के जाइए. अभी विश्वामित्र ने मन में सोचा कि यार मैं इतने सारे सैनिक है, काफी सारे सैनिक है, बेचारे मतलब सेज के पास कुछ होता नहीं, व्हाई टू पुट हिम इन दैट पोजीशन. तो ही वाज सेइंग जरूरत नहीं, ये नहीं वो नहीं. देन वशिष्ठ मुनि अगेन ही ट्राइड टू उनको थोड़ा सा कन्विंस करने का ट्राई किया कि प्लीज ले लो करके. देन ही सेड ठीक है, मतलब थोड़ा सा पानी और थोड़ा कुछ दे दो करके. So, but by the power of कामधेनु, he prepared एकदम 56 भोग उन्होंने सारे सैनिक के लिए किया. तो he was सरप्राइज कि कैसे करके. देन ही सॉ कि अरे एक गाय है वहां पे करके. तो उन्होंने बोला कि ये गाय जो है, ये उसके बदले में आपको बहुत सारे गाय दे दूंगा, लाखों में दे दूंगा, ये मुझे दे दो कि ये ऐसे सारे चीजें राजा के पास होना चाहिए करके, इट शुडंट बी विथ यू. तो वैसे उनमें बहस हो. तो कामधेनु वॉज शी वांटेड टू सर्व वशिष्ठ मुनि, तो शी वाज नॉट रेडी टू गो. तो उनमें दोनों में झगड़ा हो गया. जब वो प्रेशर पुश करना स्टार्ट किया, तो वशिष्ठ मुनि ने अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से, जो उन्होंने मिस्टिक पावर जो एक्युमुलेट किया था, उन्होंने सारे लोगों को मारना स्टार्ट किया. उनके शरीर से उन्होंने काफी सारे पावरफुल बीइंग्स निकालने स्टार्ट किए थे. एंड देन ही सॉ दैट विश्वामित्र, भले उनके पास कुछ वेपन्स वगैरह थे बट ही कुडंट फाइट. तो उन्होंने जाके कुछ जप किया, पूरा तपस्या किया, जस्ट इन एंगर
गुस्से में आके किया उन्होंने, ताकि वो वशिष्ठ मुनि को डिफीट कर सके। बट जब वो आए, उन्होंने उनको कुछ मिस्टिक पावर मिला, ही स्टिल वाज नॉट द ब्रह्म ऋषि, वाज नॉट द लेवल ऑफ वशिष्ठ मुनि। तो again it was, he was kind of defeated, but he managed to curse the sons of Vashishta Muni to become to be in hell for millions of years, ऐसा कुछ उनको कर्ज दिया था। they kind of became like जैसे zombies टाइप होते हैं, ऐसा कुछ बन गए थे, डेमोनिक इन ह्यूमन बॉडी, ऐसा कुछ हो गए थे। एंड देन उनका उनका डिफीट वापस हो गया। सो ही अगेन वेंट, और वहां पे जब कर रहे थे तब वहां पे अप्सरा आई थी, आई बिलीव उरम्बा, राइट? तो वो Urvashi, जब आए, उर्वशी, उर्वशी, यस राइट प्रभु, उर्वशी आई थी। और उर्वशी आई थी तो ही फेल इन लव विथ उर्वशी, और संसार बीता के कुछ एक 10,000 साल ऐसा कुछ, काफी लंबे समय तक उनके साथ थी। एंड आई बिलीव शकुंतला उनसे हुई रहेगी, that is though not mentioned in Raman, but I think that because there is no other mention of any other wife of विश्वामित्र। बाद में ही रियलाइज किया, अरे व्हाट एम आई डूइंग करके, मैं डिविएट हो गया करके। तो ही काइंड ऑफ लेटर गो, और उन्होंने वापस किया। और वापस नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल रंभा आई थी, बट ही एट दिस टाइम ही वाज वेल अवेयर कि क्या चल रहा है करके, एंड शी बिकेम स्कैर्ड, तो फिर भी लेट हर गो। और ऐसे करते करते एट वन टाइम ही गॉट दैट पोजीशन, बट देन बाय दैट टाइम उनको गुस्सा था, मतलब उन्होंने सारा किया, एक लेवल तक आए थे, मतलब नॉट द फाइनल लेवल, एक लेवल तक, उसके नीचे एक लेवल पे आए थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को पूछा कि मुझे ये लेवल क्यों नहीं मिल रहा है करके। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि अब तक आप गुस्से पे काबू नहीं कर पाए। तो फाइनली उन्होंने गुस्से पे काबू कर दिया था, व्हेन व्हेन ही डिड दैट, और उनको वो पदवी मिला जो उनको चाहिए था, ब्रह्म ऋषि का। बट उसके बाद बिकॉज उन्होंने गुस्से पे काबू किया, Maharshi Rishi, na Prabhuji, Maharshi or Brahma? Because आ, Vasishtha was having that Maharshi and he wants to compete with them, something like that, am I right? हाँ, तो उनमें से एक था Yeah, ब्रह्मा या महर्षि, जो जो फाइनल था उनमें से, yeah. Final वो position is there फाइनल in the all पोजीशन के Rishi. लिए। Yeah, yeah, right. या Yes. यू मे बी राइट प्रभु, महर्षि हो सकता है या फिर Mm. ब्रह्म हो सकता है, वो आई विल चेक दैट प्रभु। No, no, it's okay, bro. तो Because he वो was लास्ट, always jealous with Vaishishta. He was having that degree title, and why he was not having Vishwamitra, I या think. जेलस से ज्यादा ही वाज, Yeah, बिकॉज ही वांटेड टू डिफीट हिम। उनको yeah, वो yeah, इंसल्ट, exactly, हाँ, exactly. ईगो हर्ट Yes. हुआ था। तो Yeah, उनको डिफीट करने के लिए उनको वो लेवल पे आना पड़ेगा, राइट? सो right. इफ यू वांट टू फाइट विद समवन, यू हैव टू बी एटलीस्ट एट दैट लेवल ऑफ दैट पर्सन। कि बाकी Okay. का कुछ भी वो मिस्टिक पावर ले, दैट इज ऑल फेलियर। Yes, yes. तो उनको Okay. गुस्सा था, और काफी सारे बीच में पास्ट टाइम्स भी हुए थे। देन फाइनली जब उनको मिला, हियर बाय दैट टाइम ही वाज लाइक, उन्होंने काबू कर दिया था। एंड वशिष्ठ मुनि आए थे जब वो टाइटल उनको मिला था, तो वशिष्ठ मुनि He वहां पे आए himself, थे। yeah, he after that he himself bless him and give that. हाँ, उन्होंने खुद उनको ब्लेस करके उन्होंने ये किया था, राइट प्रभु। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ विश्वामित्र, जो राम जी को नरेट किया था किसी एक मंत्री ने, जनक महाराज के मंत्री ने, जब शिव धनुष का जब ये होने वाला था, जो सीता मैया के मैरिज के लिए, तो उस वक्त जब मिले थे, तभी जनक महाराज के एक मंत्री ने, so he narrated the glories of the story of Vishwamitra to Ram and Lakshmana. So this is Vishwamitra, और उसके बाद है अंगिरा। He is one of the 6 mental sons of Brahma, and yeah, Mataji. Yeah, Prabhu. So, why at the time of marriage was there any need to tell or to narrate this story, Prabhu? तो माताजी ऐसे हुआ था कि what was that lady's name that turned into a stone by Gautam Rishi? Ahalya, right? Yes, yes, Ahilya Devi, I think. Yeah. Ahilya Devi. So Yeah. Ahilya Devi's son was ministering with जनक महाराज। तो जब राम जी आए, ये सब करके जब उनको वापस उनका फॉर्म रिस्टोर किया, और वापस जब आए थे, रिस्टोर इन द सेंस, वहां पे पत्थर नहीं, वो शी वाज सपोज टू बी इनविजिबल, और शी वुड बी लाइक ए स्टोन। तो एक्चुअली स्टोन हुआ कि नहीं वहां पे रामायण में मेंशन नहीं किया, बट शी वुड बी इनविजिबल, शी वोंट बी सीन बाय एनीवन, एंड शी वुड बी लाइक ए स्टोन, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, एक जगह पे पड़ी रहेगी। तो जब वो गए थे, तो मंत्री ने आके पूछा कि क्या सीन, मतलब क्या स्टेटस है मेरे माता पिता का। तो उन्होंने बोला कि राम जी ने उनको मुक्त कर दिया, और अपने पिता के साथ वह भी है करके, मतलब आपके पिता के साथ। तो वो ऋषि ने, सो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, की विश्वामित्र ने सब अरेंज किया, सो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड ही नरेटेड द पास्ट टाइम टू
राम जी एंड लक्ष्मण। इट वाज जस्ट कन्वर्सेशंस वहां पे हो रहा था उनके बीच में। और जनक महाराज के यहाँ पे वो शिव धनुष का ये होने वाला था, क्या बोलते हैं उसे, पूजा हो रहा था। तो राम जी एंड लक्ष्मण वेर ईगर टू सी ये क्या है करके, तो विश्वामित्र टुक देम अलोंग विद अदर सेजेस कि हाँ ठीक है हाँ देखते हैं कि बाकी सेजेस वहां पे जाने वाले थे, तो उन्होंने पूछा कि ये क्या कहाँ पे जा रहे हैं करके, विश्वामित्र के कुटीर में। तो एक राक्षस को मारने के लिए बुलाया था, राइट। सो राक्षस के लिए उन्होंने जब वो हुआ राक्षस को मतलब यज्ञ संपन्न हुआ, तब वो सेजस बोले कि हमें अभी जनक महाराज का जाना है। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या धनुष है करके, तो विश्वामित्र बोले ठीक है हम लोग भी जाते हैं। सेजस ने पूछ किया चलो जाते करके आग्रह किया। वहां पे जाने के बाद थोड़ा सा बातचीत होता है ना, राइट। तो कैसे क्या जनक महाराज बातचीत, तो उस बातचीत में जब ये मंत्री ने जब बातचीत तो उन्होंने आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड उन्होंने विश्वामित्र का ग्लोरियस जो स्टोरी मतलब कैसे विश्वामित्र ने उन्होंने FIA करके बताया था। सो दैट देयर इज नो अदर रीजन फॉर दैट, अच्छा अच्छा अच्छा। नॉर्मल हालचाल के लिए। सही है प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे Prabhuji, कृष्णा। one more year pastime is there Vishwamitra, am I right? Samba or someone, he wants to send that one person with the human body to Vaikunta. Yes, Then yes. he decided to make some सांबा planet. नहीं, but yeah, That's there is one person, yeah. yeah, right, na? हाँ प्रभु, तो And एक finally एक राजा था, राइट। failed, I think. Am I right? या प्लीज प्लीज कंटिन्यू प्रभु। Yeah, something like that was that he promised that I will send you with the human body to the Vaikunta. And he tried his ही वाज best. वशिष्ठ मुनि का वो, नॉट आई वुड से डिसेबल, बट उनके मतलब राज्य जो प्रिस्ट रहता है वो हाँ, वशिष्ठ मुनि थे उनके, वो राजा के। सो हाँ, ही वांटेड टू गो टू हेवनली बॉडी विद द सेम बॉडी, हेवन टू द सेम बॉडी। right. तो उन्होंने ना बोला, तो उनके पुत्र के पास गए, तो उनके पुत्र ने भी उनको भगा दिया, अरे तुम्हारे पिता ने ऐसे किया, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो ही वॉज कर्स्ड कि तुम मतलब एक यू लुक लाइक ए वेरी वेरी अगली पर्सन, Lady, चांडाला lady something, चांडाला, yeah, हाँ yeah, something like that. चांडाला बनोगे, राइट राइट। यू वांट टू कंटिन्यू प्रभु। No, it's okay, Prabhuji. Why? But I'm just connecting this Vishwamitra. Then I think या राइट। finally he did lot of tapasya, but he failed, and then he made some small planet or something like that for him. Am I right? या तो हेवनली Because बॉडीज में whenever he हेवन, used to go up, then Indra's people they will throw him from the, I think या from एक बार ही Swarga हुआ they था, will throw him. इंद्र ने, हाँ इंद्र ने नीचे फेंक दिया था, बिकॉज इंद्र ने नीचे फेंक दिया था तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने खुद का हेवनली प्लैनेट बनाया। और दैट वाज बिफोर रीचिंग दैट फाइनल स्टेज। तो Yeah. खुद का हेवनली प्लैनेट बनाया और खुद के देवता बनाना स्टार्ट किया, तो सारे देवता वहां पे आ गए ऐसे क्यों कर रहे हो करके। तो उन्होंने बोला कि आपने डिसरेस्पेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि डिसरेस्पेक्ट नहीं, बेसिकली क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने गुरु का आज्ञा का पालन नहीं किया, तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग में जगह कैसे मिलना चाहिए। तो उन्होंने बोला एनीवेज मैंने इसको जबान दे दिया, तो जो प्लांट्स ऑलरेडी बन गए वहां पे मैं उसको भेज दूंगा करके। और ऐसे करके हेवनली खुद का हेवन बना के उधर उस राजा को भेज दिया था, Yeah, yeah. राइट That प्रभु। much he was having the mystic power, and he was very strong, you यस, know. एंड ही वाज स्टिल नॉट ऑन द फाइनल स्टेज। Yeah, वो अब yeah, तक right. वो तब तक वो महर्षि या ब्रह्मर्षि जो भी है वो लेवल पे पहुंचे नहीं थे। Yeah, yeah. जय, Hare थैंक्स थैंक्स Krishna. प्रभु, That's या all. हरि बोल प्रभु। तो अंगिरा वाज he was one of the 6 mental sons of Brahma and the father of Brahaspati, the great learned priest of the demigod. बृहस्पति इंद्र का priest है, स्वर्ग का priest है। He was born of the semen of Brahmaji, given to a cinder of fire. Uttatha and Samavarta are his sons. Utatya and Samavarta. It is said that he is still performing austerity and chanting the holy name of the Lord at a place known as Alokananda on the banks of Ganga. Very बोल। परशुराम देखा है पहले, उतथ्य जो आगे ऊपर पढ़ा था। सो वन ऑफ द 3 sons of Maharishi Angira, he was a spiritual master of Maharaj Mandata. He married Bhadra, the daughter of Soma Moon. Varuna kidnapped his wife Bhadra, and to retaliate the offense of the god of water, he drank all the water of the world. Hari bol. Medhatiti, an old sage of yore, he assembly member of the heavenly kingdom of Indradev. His son was Kanva Muni, who brought up Shakuntala in the forest. He was promoted to the heavenly planet by strictly following the principle of retired life Vanprasth. सब बड़े बड़े लोग हैं। Devala, a great authority like Narada Muni and Vyasdev. His good name is on the list of authorities mentioned in the Bhagavad Gita when Arjuna acknowledged Lord Krishna as the supreme personality of Godhead. जब अर्जुना बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बड़े ऋषियों ने भी एक्सेप्ट किया, तो उसमें से देवला का भी नाम है। He met Maharaj Yudhishthir on the bank of Kurukshetra and he was the elder brother of Daumya, the priest of Pandava family.
like the Kshatriyas, he also allowed his daughter to select her own husband in a Swayamvara meeting. And at that ceremony, all the bachelor sons of the rishis were invited. According to some, he is not असीता देवला. तो कुछ लोगों का कहना है कि असीता देवला नहीं, कुछ लोग बताए कि असीता देवला करके है. सम मुनि के बारे में. भरद्वाज हुआ गौतम ऋषि, वन ऑफ द 7 sages of the universe. Sharadvan Gautam was one of his persons in the Gautama Gotra dynasty today are either his family descendants or in his disciplic succession. The Brahmanas who profess Gautama Gotra are generally family descendants, and the Kshatriyas and Vaishyas who profess Gautama Gotra are all in the line of disciplic succession. He was the husband of the famous Ahalya, who turned into stone while Indradev, the king of heaven, molested her. Ahalya was delivered by Lord Ramachandra. Gautama was the father of Kripacharya, one of the heroes of the battle of Kurukshetra. तो कृपाचार्य के जो पिता थे वो गौतम ऋषि है, एंड ही इज वन ऑफ द 7 गोत्र जो आते हैं, कश्यप गोत्र वगैरह हम लोग बोलते हैं ना, तो उसमें एक गोत्र गौतम गोत्र का है. अहल्या देवी के Prabhuji, पति. sorry, this Gotra like Jamadagni. My Gotra is Jamadagni. ओ हरि बोल. So these are what you tell 7 Gotra. We have 7 हाँ. Gotra, am I right? हाँ, हाँ, 7 सेजेस से 7 गोत्र. तो बेसिकली मैंने एक जगह पे पढ़ा था, नॉन इस्कॉन जगह पे पढ़ा था, सुना था. वहां पे वो थोड़ा सा मतलब साइंस बियंस करने वाला बंदा था, बट दैट ही गेव ए साइंटिफिक व्यू टू इट. तो उसने क्या बोला कि गोत्र एंड इज ऑल साइंटिफिक. गोत्र सिर्फ हम लोग देखते हैं ना कि हस्बैंड लिनेज से ही हम लोग देखते हैं, राइट. मतलब अगर Yes. शादी होता है तो पत्नी पति का गोत्र एक्सेप्ट करती है, कभी हाँ. पत्नी का गोत्र एक्सेप्ट करते हुए सुना नहीं है. Yes. तो probably some people ने look करे ये तो वापस मेल डोमिनेटेड, बट he gave a scientific explanation to it. उन्होंने बोला कि डीएनए में, इंसान के डीएनए में there is some particular signature that remains that continues in the next generation only in the body of male. फीमेल के बॉडी में वो होता नहीं, मेल के बॉडी में होता है. so, जब कोई लड़का आएगा तो वो पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए वो सिर्फ मेल बॉडी में, अगर लड़की हुआ रहेगा वो स्ट्रैंड ऑफ डीएनए उसमें आएगा नहीं. दैट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज एज गुड एज गोत्र. क्योंकि कश्यप से अगर आया रहेगा लेट से, या फिर जमदग्नि से आया रहेगा, सो दैट पर्टिकुलर स्ट्रैंड फ्रॉम हिम विल कंटिन्यू फॉर ऑल दोस पीपल डाउन द लाइन. तो इसलिए जब पत्नी जब आती है देन दे एक्सेप्ट, बिकॉज उनके पास वो डीएनए का स्ट्रैंड नहीं रहता है, इट बायोलॉजिकली, अगर हम लोग बायोलॉजिकली, सो दे एक्सेप्ट द हस्बैंड्स क्या बोलते हैं उसे गोत्रा, या फिर जब उनको बच्चे होते हैं देन दैट हस्बैंड का डीएनए स्ट्रैंड वो बच्चों में आता है, लड़कों में. So that is the scientific explanation he gave for that gotra. Though I have not researched it myself, मैंने डिटेल में किया नहीं, but this person was a renowned he was a researcher, so I'm assuming that what he said was true. Just wanted to share that. It is because Mataji. you explained in that way. So now let's say there is a couple and उनका एक बेटी है या 2 बेटी है, right? अभी बेटा नहीं है, तो वो फिर उनका वो जो डीएनए जो ट्रैवल कर रहा था, जनरेशन टू जनरेशन, तो फिर वो डायनेस्टी उधर ही खत्म हो जाएगा प्रभु. या माता जी, कंसिडरिंग कि उसके और कोई चचेर चाचा नहीं है, उसके पिताजी के कोई चाचा नहीं थे, उसके पिताजी के पिताजी चाचा नहीं थे, तो वो तो चांसेस बहुत कम होता है कि ऐसा होता नहीं है. सो यूजुअली स्टार्टिंग में इतने सारे भाई बहन हुआ करते थे पहले, इतने सारे, तो वहां पे इतने सारे हम लोग को पता भी नहीं कि हमारे कितने कजिन से देखा जाए तो दूर के कजिन्स, वी डोंट इवन नो. तो वैसे होगा नहीं, बट उसके yeah because I think these are only the reasons why Indians are more fond of लड़के. boys. हाँ, पॉसिबल माता जी, हर एक. हाँ, हो सकता है माता जी, वो एक रीजन होता है. तो देयर कैन बी मल्टीपल, वी डोंट नो माता जी. आई मीन देयर इज ए व्हाट यू से a spiritual angle to it, and there is also what you call social या फिर immoral angle to it as well. जैसे लड़का आके कमाएगा, मतलब in few places, yeah, in few places because lady, हाँ,
girls are हाँ not तो given education, so they used to be considered as burden. That is not the case anyways now in most of the places, at least 95-97 places ऐसा नहीं है परसेंट में, बट कुछ जगह पे पहले हुआ, कुछ जगह पे हुआ करता था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन या फिर जो जो भी इन्वेजन हुआ करता था, सो वो उधर उधर प्रॉब्लम था, बट अदरवाइज काफी सारे चेंजेस हुए। गवर्नमेंट ने भी जब लड़की हुई तो यू विल गेट अराउंड 1 लाख लड़की के नाम पे डिपॉजिट होगा, तो काफी सारे स्कीम्स निकाले थे। सो उसके बाद लोगों का नहीं तो नजरिया भी वो चेंज होने लगा, काफी कुछ तो एजुकेशन सही तरीके क्या से आने लगा। या no that या but that is दैट इज ट्रू माता जी। something So yeah but this that is may not be only something reason, but yeah, as you rightly said, this can be one of the reasons where people used to push for male. Yeah. yeah so basically जैसे शुरू में जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ, अभी हम लोग गंगा को या यमुना को गंदा कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं बिकॉज एवरीथिंग वाज सैड कि भाई अगर आपने पूजा किया, उसके फ्लावर्स, उसका जो जितना भी मटेरियल है लेफ्ट ओवर है वो सब आपको गंगा में बहाना है या चलते पानी में बहाना है, तो दिस वाज नॉट सेड बाय any individual, it was said by the munis, it was said by the this अपना जो अपने पुराने देश जो मुनि और ये सब होते थे उन्होंने ही बोला है कि आप इसको ऐसे कहीं भी नहीं डालो, just flow it away in any river। अभी अभी बिकॉज ड्यू टू द पॉपुलेशन, इतना पॉपुलेशन है कि वो पहले कोई फर्क नहीं पड़ता होगा बिकॉज रेशियो वाज वेरी लेस, बट अभी वो फर्क पड़ता है क्योंकि the ratio is very high of the population. True, So true, Madhu. similarly for the girls case also, now it has given in the scripture, it has taken from the scripture only कि भाई girls से नहीं चल सकता because of the scientific reason as you mentioned। and I don't know but बाबू हमें how right even आपको भी नहीं पता रहेगा कितना है कितना नहीं है, but दिया है तभी इसी के लिए फिर the public is running कि भाई लड़का ही हो बिकॉज हमारा वंश नहीं चलेगा, ये नहीं होएगा, वो नहीं होएगा। True, true. तो somewhere down the line I feel या हम लोग गलत नहीं है, I mean we are very innocent। वो जो पहले से चलता आ रहा है, we are not just following। हाँ लोगों को नई रीजन पता है अभी, जैसे आपने बताया तो अभी रीजन पता चला why the वंश will नहीं चलेगा अभी करके, तो वो इसलिए नहीं चलेगा बिकॉज वो फैक्टर, वो जो डीएनए आपने बताया जैसे वो होता ही नहीं है गर्ल्स के अंदर, that only floats from male me। so I think these are the factors, but I think थोड़ा सा Exactly, फिर sir, इसमें Mataji. They are innocent or misguided बोल सकते हैं हम लोग। Our few ancestors मतलब कुछ level तो they are misguided, and why they were misguided because of lack of spiritual knowledge। तो spiritual knowledge नहीं था, discussion नहीं था। तो हाँ भाई लड़का तो होना ही चाहिए, बिना लड़की के तो वंश ही नहीं चलेगा। अब बात भी सही है, राइट ना, पीपल आर बिहाइंड कि भाई अभी लड़का ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, फिर चाहे फिर कुछ भी करना पड़े। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया प्रिसाइजिंगली। True, Mataji. That is the case. Another thing, Prabhuji, see, they used to disposal. That time there was no any chemicals ingrained in the materials. It was everything was biodegradable. There was no environmental impact also. True. Now recently, what happened? A lot of chemicals and other stuff is included, which is causing harmful. True, Prabhu. Yes. That time, even we used to eat the plates that is on the banana leaf. So anything was biodegradable. There was no, I think, environmental impact with anything. सही बोला प्रभु, क्योंकि मेजरली जो पॉल्यूशन है इट इज रादर देन फ्लावर्स, बिकॉज फ्लावर्स वगैरह कैसे है वो माता जी, वो जब चिपक जाता है बैंग में इट एक्ट्स लाइक ए फर्टिलाइजर, लेकिन हमारे प्लास्टिक की फ्लावर से ज्यादा है, प्लास्टिक की थैली में डाल के डालेंगे या फिर हम लोग केमिकल्स इतने आते हैं फैक्ट्री से, सो दैट हैज मेड गंगा और एनी अदर रिवर एक्चुअली हैजार्डस बोलना सही रहेगा, नॉट डर्टी, हैजार्डस हो गया। Another thing, Prabhuji, here Gotra is very important for us. Whenever we do the pujas, we tell them, because this, I think, GPS connecting, we discussed, I think, in our class also previously during the COVID. Whenever we do the puja, like Brahmana, they will ask us, what is your Gotra? So then we tell it. So I think this is a GPS connected to the maybe Vaikunta or I don't know where it is. So each puja, so they will ask, Brahman will ask us, what is your Gotra? Then they will take the name and then the puja, I think, मतलब वो उसका आपको फल मिलेगा या कनेक्शन हो गया, दैट यू आर डूइंग सम रिचुअलिस्टिक और यज्ञ आप कर रहे हो, ट्रू। ये प्रभु जब आपका यूजुअली आपका नाम का अगर पूजा कर रहे हो तो मैं अगर बोलूं सतीश प्रभु
ही इज प्रेइंग। Yeah. तो अगर आप Yeah. अगर पूजा सुनोगे क्लियर केयरफुली, तो ही इज ट्राइंग टू लोकेट विच पर्सन इज सेइंग दिस। तो वो लोकेट करने के लिए ही हैज टू गिव सम स्पेसिफिक डिटेल्स। जैसे अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे बोलते हैं हम लोग, ये लोकेशन में है तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड स्ट्रीट 10, ये वो डिस्कवरी, वो सब हम लोग बताते, राइट। सो वी गिव, सो वी कैन नैरो डाउन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ पे कैसा होता है, अगर आप देखो कि इट इज नॉट ओनली गोता, इट इज ऑल्सो द लोकेशन। तो वो जम्बूद्वीप जो हम लोग आगे सब देखने वाले हैं, जम्बूद्वीप वगैरह, जो अपना 7 आइलैंड्स है अर्थली स्पीयर का, स्पीयर अर्थली प्लेन का, तो उसमें जम्बूद्वीप के ऊपर ये भारतवर्ष है, ऐसा सब हम लोग बोलते हैं। और उसमें ये जगह पे और इस जगह पे बाद में ये गोत्र से आया हुआ, और इसका पुत्र पुत्री भी बोलते हैं वो लोग, माता पिता का नाम भी पूछते हैं कभी कभी। तो वो, और ऐसा करके वो लोग दे ट्राइंग टू पॉइंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, और ये पर्सन पूजा आपको दे रहा है। सो दिस इज हाउ दे ट्राई टू, और उसके लिए वो लोग गोत्र वगैरह पूछते हैं, राइट प्रभु, दे डू दैट ड्यूरिंग द पूजास। हरि बोल। So then the last one is Maitreya, a great rishi of yore. He was a spiritual master of Vidura and great religious authority. He advised Dhritarashtra to keep good relationship with the Pandavas. Duryodhan disagreed and thus was cursed by him. He met Vyasdev and had religious discourses with him. मैत्री ऋषि अपने को भागवत में आगे आने वाला है। So these were the different rishis that Prabhupada has given us some good information. We will take a couple more purports. तो वहाँ पे there were other saintly demigod kings and special royal called as Arunadhyayas, the special on Raj Rishi. तो उसमें जब आए थे तो the system of they are assembled and Parikshit Maharaj received them properly and bowed his head to the ground. तो उसके ऊपर प्रभुदा बोलते हैं the system of bowing the head to the ground to show the respect to the superior is an excellent etiquette which obliges the honored guest deep into the heart. Even the first grade offender is excused simply by this process. And Parikshit Maharaj, although honored by all the rishis and kings, welcomed all the big men in that humble etiquette in order to be excused from any offenses. Generally, at the last stage of one's life, this humble method is adopted by every sensible man in order to be excused before departure. In this way, Maharaj Parikshit implored everyone's goodwill for going back home, back to Godhead. कुछ जगह पे हम लोग मतलब पता नहीं ट्रेंड है कि नहीं, बट आई हैव सीन द पीपल, जब वो उनको पता है जब मरने वाले हैं, देन सबसे माफी मांगते हैं, मूवीज में कभी कभी दिखाते हैं। तो दिस इज ऑल अपने यहाँ पे ऑलरेडी हुआ करता है। सो एंड दिस इज एज ए प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस, कि अगर कुछ गलती हुआ रहेगा, कुछ हुआ रहेगा तो अगर कुछ हुआ रहेगा तो माफ कर दो, लेट्स नॉट कीप एनी ग्रज, ऐसा करके दे डू दैट, दिस पीपल यूज्ड टू डू दैट अर्लियर। सो Prabhupada is highlighting that point over here. तो वहाँ पे काफी सारे द मोस्ट वहाँ पे जब परीक्षित महाराज बोलते हैं कि काफी सारे सेजेस वगैरह आते हैं, आप यूजुअली डिस्टेंस रखते हैं, बट यू स्टिल कंसिडर्ड मी, और आपने मेरे पास है, यूजुअली कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल द किंग्स वगैरह। तो उसमें प्रभुपाद बोलते हैं अलोंग टू द रिलीजियस प्रिंसिपल्स, स्टूल, यूरिन, wash water, etc. must be left at a long distance. Attached bathrooms, urinals, etc. may be very convenient amenities of modern civilization, but they are ordered to be situated at a distance from the residential quarters. जो अपने यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टॉयलेट वगैरह नहीं हुआ करता था गाँव में, बाहर जाके करना पड़ता था। We used to consider them ऑर्थोडॉक्स या फिर ये क्या है करके, बट देयर वाज अ रीजन फॉर दैट। पहले के जो सिविलाइजेशन था, इट वाज मच मोर स्पिरिचुअल देन व्हाट इट इज करंट। अभी तो कुछ स्पिरिचुअल है नहीं, बट पहले काफी हुआ करता था। सो दिस थिंग्स, अगर दिस इज आई एम नॉट श्योर इफ यू डिस्कस दैट। तो जब पीरियड्स में हुआ करते, वुमेन को टेंपल में अलाउड नहीं हुआ करता, या फिर घर के अंदर घर के अंदर भी जो मंदिर रहता है उसमें ऑल्टर के रूम में अलाउड नहीं हुआ करता था। सो रीजन बीइंग दैट this was told by one of the Vaishnavas in one of the seminars. So जैसे ये स्टूल, यूरिन, ब्लड एंड सीमेन, ये चार चीजों को अगर हाथ लगाते हैं
then you have to take a head bath basically. तब जाके आप भगवान की सेवा में लग सकते हो. मे इट बी, एंड किचन एंड ऑल्टर आर नॉन डिफरेंट. ये हम लोग को समझना है. किचन हम लोग अभी अलग करते हैं, अभी भी टेम्पल में ऐसा होता है, एंड दैट यूज्ड टू बी द प्रैक्टिस अर्लियर कि किचन इज द पार्ट ऑफ ऑल्टर रूम, टेम्पल रूम, घर के अंदर. दे आर कनेक्टेड इन द सेंस, कनेक्टेड मतलब फिजिकली कनेक्ट नहीं रहेंगे, बट दे आर द सेम, बिकॉज जो भी खाना बनता है इट यूज टू बी फॉर द डीटी, और उसके बाद बाकी लोग खाते थे. एंड इट वाज अ प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल, तो पहले से हुआ करता था. तो जैसे इसलिए वो स्टूल, यूरिन, सारी चीजें थी, वो घर से कनेक्टेड नहीं कर, क्योंकि घर डीटी का वर्शिपेबल प्लेस, इट वाज लाइक ए टेंपल. सो इफ दे हैव ए डीटी एट होम, दे यूज्ड टू कंसीडर द होल हाउस एज द टेंपल. तो इसलिए वो मल मूत्र वाला सारी चीजें वो लोग दूर दूर रखा करते थे. तो दूर कहाँ पे, आप कुछ गांव घरों में अभी भी देखोगे गांव में, कि अगर दूर नहीं रखते थे, गांव के बाहर नहीं रखते थे, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द आइडियल वे. वो लोग एटलीस्ट घर से डिस्कनेक्टेड, वही उनके आंगन में घर से डिस्कनेक्टेड छोटा सा यूरिन का एक रूम टाइप बनाते थे, टॉयलेट का एक टॉयलेट, छोटा टॉयलेट रूम बनाते घर से डिस्कनेक्टेड, बट उनके आंगन में रहेगा लेकिन घर से डिस्कनेक्टेड. तो दैट यूज्ड टू बी द सिनेरियो अर्लियर. या फिर घर के बाउंड्री, गांव के बाउंड्री के बाहर जाके वहां पे मलमूत्र छोड़ दो, एंड दैट यूज्ड टू बी एक्टेड एज नेचुरल फर्टिलाइजर जो भी है. अनफॉर्चुनेटली उसके डाउनसाइड्स भी थे, बट दैट वाज द थॉट प्रोसेस अर्लियर. एंड सेम फॉर विद द सेम लॉजिक, अगर वुमन का, अगर उनका पीरियड्स हुआ करता था, तो अर्लियर दे डिड नॉट हैव पैड्स एंड ऑल, तो कपड़ा हुआ करता था, तो ब्लड वगैरह यहाँ पे पड़ता, तो अगर टच हो गया डीटी रूम में, उसको टच नहीं होना है. सो दैट इज व्हाई दे वर आस्क्ड टू बी सिटेड इन वन कॉर्नर, इधर वो घुमाओ मत, ताकि ब्लड वहां पर यहाँ वहां फैलेगा नहीं. एंड गलती से कोई डीटी का वर्शिप कर रहा है, जो चाहे किचन में हो या डीटी रूम में हो, if they come in contact with the blood and if it goes unnoticed, then that can be an offense to the DT. तो या फिर उनको वापस पूरा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर किसी प्रोसेस के बीच में, तो छोड़ के वापस नहा के वापस स्टार्ट करो. So for the convenience, they used to do that, and this is how things were. It was these things, blood. I mean, it is like अगर आपके बाजू बगल में कोई इंसान जिसको बहुत खून आया है, he got hurt in accident or something, आपके बगल में आके बैठ गया, so you will be, थोड़ा सा आप उससे दूरी रहोगे, राइट? बिकॉज हम लोग के सबके अंदर ब्लड है, ब्लड इज नॉर्मल, बट लगन ब्लड जब बाहर आता है लोगों को पसंद नहीं आता है, तो they think it is unhealthy basically. ब्लड अगर नीचे गिरा रहेगा, you won't go and touch that blood, right? Because it is part of my body. You consider that unhealthy, unhygienic consider करते हो जब ब्लड बॉडी के बाहर आता है. तो वैसे ही in case of DTs also, that was considered as impure blood. It is not only for women that we have to consider. अंदर से it was for also men. अगर मैं पूजा करते वक्त मुझे मेरा अंगुली कट गया, then I cannot do the DT worship. I cannot continue DT worship. I have to wait till the blood stop. I have to take a head bath, and then I have to do the DT worship. So this is how it used to be earlier. It was not only restricted to women. It was for the blood on any person irrespective of gender. जिस व्यक्ति पे ब्लड आ रहा है, he cannot do any DT related worship or cannot be in contact with anyone, physical contact with anyone doing DT worship. So that was the logic. तो यहाँ पे भी वही बताया गया कि अटैच बाथरूम वगैरह पहले हुआ नहीं करते थे. इट इज कन्वीनियंट एंड वी मे नॉट इवन गो फॉर दैट. हम लोग अभी दूर रखेंगे नहीं, बिकॉज वी आर यूज्ड टू दैट कंफर्टेबल लाइफ, बट देयर वाज रीजन बिहाइंड इट. इट वाज नॉट जस्ट बिकॉज वी डिड नॉट हैव ए नॉलेज ऑफ इतना सारा. हम लोग ने ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा और इसका हम लोग देखे थे, जो वहाँ पे नागा से कि हड़प्पा में देखा उन्होंने 8-10 हजार साल पुराना. एक्चुअली इट इज नॉट इवन 5-6, इट इज मोर देन 10,000 years बैक. और वहां पे इतना परफेक्ट ड्रेनेज सिस्टम रख सकते थे, एक टॉयलेट नहीं बना सकते थे क्या वो लोग? सो देयर वाज अ रीजन व्हाई दे वर नॉट डूइंग इट, एंड इट वाज नॉट बिकॉज दे वर लाइक क्या बोलते उसको, बैकवर्ड थे सिविलाइजेशन में. इट वाज नॉट द रीजन. दे वर उल्टा, वो सिविलाइजेशन काफी स्पिरिचुअल थे, एंड दैट इज व्हाई दे वरंट डूइंग दैट. Okay, so that very example is cited here in relation to the kingly order for those who are progressively marching back to Godhead. Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu said that to be in the intimate touch with the dollars and sandmen, मतलब materially attachment जो पैसे वगैरह करते हैं, or the kingly order is worse than suicide for one who desires to go back to Godhead.
उनका एक पास टाइम भी है एक राजा के साथ, राइट? सो ही वांटेड टू टेक द दर्शन एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य, बट ही सेड नो, मैं राजाओं से दूर रहता हूं करके। बट देन बिकॉज ही वाज अ डिवोटी, बाकी उनके जो एसोसिएट थे उन्होंने अरेंज किया, ही केम विदाउट द अटायर ऑफ द किंग, सेवक बन के उनका पैर मसाज किया, एंड द किंग देन एम्ब्रेस्ड हिम, सॉरी चैतन्य महाप्रभु देन एम्ब्रेस्ड हिम. So in other words, the transcendentalists do not generally associate with the men who are too enamored with the external beauty of the God's creation. By advanced knowledge in the spiritual realization, the transcendentalist knows that this beautiful material world is nothing but a shadowy reflection of the reality, the kingdom of God. They are not therefore very much captivated by the royal opulence of or anything like that, royal material opulence. तो ईश्वर चक्र ठाकुर क्या कहते हैं उनके इसमें, द किंग एक्सप्रेसेस एप्रिशिएशन फॉर द नेचुरल कंपैशन टुवर्ड्स हिम दैट ही सीज इन द सेजेस. वी among the king are worthy of being blessed by the great souls. This is rare for the king. Smriti says, Durad Uchista Vinmutha Padam Bhashmi Samustrejet. One should keep a distance from leftover food, excrement, urine, and foot water. ये स्मृति में है, यज्ञवल्क्य स्मृति. The king, the family of the kings is kept at a great distance even from the foot washing place in the hermitage and are not even given permission to remain there. This is because their actions are completely impure. कभी का राजा they राजाओं का they have many wives, so obviously there is some kind of material involvement, पैसे से डील करते हैं. Sometimes youth के वक्त they have to eat flesh. तो कुछ राजाओं का और I would say majority राजाओं को दूर, but there are few exceptions like परीक्षित महाराज and so, but majority राजाओं को वो लोग दूर रखा करते थे, and sages we are not interacting with them directly. So this is what Prabhupada has mentioned and Vishwanath Thakur has mentioned for 13th sloka. We will take a pause over here. It's time, so we will take a pause and we will continue from the purport of 14th verse, yeah, 16th verse का. I think we'll do this. This is last purport of this page, और ये करके हम लोग खत्म कर देंगे आज का. So again and again, obeisance to all the brahmanas करके वो कर रहे, and if I should take birth, I will have complete unlimited. तो मुझे ब्लेस करो कि मुझे कृष्णा के लिए अटैचमेंट हो करके उस तरह से अगर मैं बर्थ लेना पड़ा. तो प्रभुपाद कहते हैं कि दैट ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज द ओनली परफेक्ट लिविंग बीइंग इज एक्सप्लेन्ड हियर बाय महाराज परीक्षित. ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज नो वंस एनिमी, ऑल्दो देयर मे बी मेनी एनिमीज ऑफ द डिवोटी. उनके मतलब वो किसी को शत्रु नहीं मानते, उसको सारे दुनिया शत्रु मानती है लेकिन वो किसी को शत्रु नहीं मानते. A devotee of the Lord does not like to associate with non-devotees, although he has no enmity with them. He desires association with the devotees of the Lord, and this is perfectly natural because the birds of the same feather mix together. अगर आप क्रिकेट में काफी इन्वॉल्व हो, काफी इंटरेस्टेड हो, और दो ग्रुप है आगे, फुटबॉल के एक ग्रुप है, क्रिकेट के, आपको फुटबॉल के ग्रुप में डाल दिया, आप यू विल ट्राई टू गेट आउट ऑफ दैट ग्रुप, क्योंकि आपको समझ नहीं रहे, इंटरेस्ट भी नहीं आपको, बट आपको बगल में आप सुने, आप बगल में ग्रुप खड़ा है और बात करे क्रिकेट का, यू विल समहाउ ट्राई टू गो टू दैट ग्रुप एंड डू द डिस्कशन, राइट? सो दिस इज वेरी नेचुरल. सो सिमिलर इज द केस ओवर हियर, कि जिनको स्पिरिचुअल डिस्कशन पसंद है वो स्पिरिचुअल लोगों के साथ, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअल लोगों के साथ ही वो रहेंगे. And the most important function of the devotee is to have complete attachment for Lord Shri Krishna, the father of all living beings. As a good son of the father, behaves in a friendly way to all of his brothers, so also the devotee of the Lord, being a good son of the Supreme Father, Lord Krishna, sees all other living beings in relation with the Supreme Father. He tries to bring back the upstart son of the father to a saner stage and to get them to accept the supreme fatherhood of the God. Basically वो preach करके उनको वापस back to God लेने का प्रयास करते हैं. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि bring them to a saner stage, मतलब एक at least एक acceptable stage में लेके आओ, better than एनिमलिस्टिक लाइफ जहाँ पे हम लोग किसी को मानते नहीं है. इट इज बेटर टू बी इन द कर्म कांडा स्टेज, राइट, जहाँ पे हम लोग एटलीस्ट देवताओं को मानते हैं, उनके नतमस्तक होते हैं उनके सामने, एटलीस्ट दे अंडरस्टैंड सम ऑथोरिटी, सो दैट इज बेटर स्टेज.
बेटर देन दैट स्टेज इज योर ज्ञान योगा। तो वहां पे ज्ञानी का स्टेज उससे बेटर है। उससे बेटर है आपका उससे बेटर है कर्मकांड से बेटर है कर्म योगा, और उससे बेटर है आपका ज्ञान योगा, और उससे बेटर आपका ध्यान योगा, और अल्टीमेटली इट इज द भक्ति योगा विच इज बेटर। सो बट सबको भक्ति योगा में तो इमीडिएट ला नहीं सकते, या किसी को ध्यान में या फिर ज्ञान में इमीडिएट ला नहीं सकते। कर्म में भी, कर्म योगा में भी सबको ला नहीं सकते इमीडिएटली, निष्काम कर्म योगा वगैरह। तो क्या करना पड़ता है? सो ठीक है, जो कर रहे हो एंजॉय करो लाइफ, बट लेट इट बी रेस्ट्रिक्टेड मैनर। कर्म कांड स्टेज में आते हैं। सो जो लोग देवताओं की वर्शिप करते हैं, वी से डेमीगॉड वर्शिप एंड ऑल, वी शुडंट डिस्करेज देम इमीडिएटली, वी शुडंट स्टॉप देम डूइंग दैट। वी शुड टेल देम अबाउट कृष्णा, वी शुड टेल देम द शास्त्र जो है वो उनको बताना है कि शास्त्र में क्या लिखा है, ऐसा लिखा है। सो देन इट इज अल्टीमेटली द मर्सी ऑफ कृष्णा एंड अदर वैष्णव्स दैट दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, अरे हाँ शास्त्रों में ऐसा लिखा है क्या, ओ दिस इज व्हाई इट इज बीइंग प्रीच्ड। तो लोग बोलते हैं अरे इसकॉन तो सिर्फ फेसिस्ट है, सिर्फ कृष्णा भगवान और कोई नहीं। देयर इज रीजन बिहाइंड दैट। वो लोग, उन्होंने कभी शास्त्र जिन्होंने पढ़ा नहीं वो लोग ही ऐसा बोलते हैं, या शास्त्र सही से पढ़ा नहीं। बट व्हेन दे रीड शास्त्र फ्रॉम द राइट सोर्स, और शास्त्रों को एक्चुअली पढ़ते हैं सही तरीके से, देन दे अंडरस्टैंड कि हाँ दिस इज ऑल कृष्णा हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी। इवन विष्णु कम्स इमेज फ्रॉम कृष्णा, दे अंडरस्टैंड इट। So they try to bring everyone to a saner stage at least. So Parikshit Maharaj was certainly going back to Godhead, but even if he were not to go back, he prayed for a pattern of life which is the most perfect way in the material world. A pure devotee does not desire the company of personality as great as Brahma, but he prefers the sweat of a petty living being, provided he is a devotee of the Lord. उनको पावरफुल नहीं बनना है डिवोटीज को, उनको सिर्फ डिवोटी बनना है। दे वांट टू बी लोअर, इधर ओके टू बी इन द लोअर मोस्ट चेन, लेकिन उनका एक ही कंडीशन है, मुझे भक्तों के संग में रहना है। दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट ए डिवोटी एक्सपेक्ट डिजायर्स। और यहाँ पे परीक्षित महाराज ने वही बोला, जब उन्होंने बोला कि अगेन ऑफरिंग ओबेसेंसेस अनटू ऑल यू ब्राह्मणास, आई प्रे दैट इफ आई शुड टेक माय बर्थ इन द मटेरियल वर्ल्ड, आई विल हैव कंप्लीट अटैचमेंट टू द अनलिमिटेड लॉर्ड कृष्णा, association with his devotees and friendly relation with all the living beings. So this is like one prayer for us basically, कि अगर मैं इस, हम लोग we know where we are, we all want to get out of this cycle life and go back to Godhead, and hopefully with Krishna's mercy, Guru Maharaj mercy, we will be able to do that. But in case we don't, then we should have this mood कि अगर मुझे वापस आना है, then I want to be in the family of the devotees, और जहाँ पे डिवोटी का एसोसिएशन हो जाए, और जहाँ पे भगवान का अनलिमिटेड मुझे ये मिल जाए, अटैचमेंट मिल जाए, वैसे जगह पे मुझे नथिंग, there is no criteria for material, it is all spiritual. So this is what Prabhupada says at the start, this is what a perfect living being will desire for, and Parikshit Maharaj desired that. So uh, we'll take a pause here and we will continue from 17th verse. Any questions before we stop the recording? No, bro. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.